Hello everyone. In our last video, we have discussed how to write SQL query in proper order. Basically, we have seen the syntactical order of SQL basic queries as well as advanced queries, right? So on that information, in this video, we are going to create one end-to-end project, which is customer sales insight. Okay, so let's have a look on the data set firstly. So there are three tables in this data set. First table is called product, right? In the product table, there is product ID, product name, category, and subcategory. The second table is order. Okay, so in this order table, there is order ID, order date, customer ID, region, किस रीजन में वो ऑर्डर प्लेस किया गया है, वो रीजन ईस्ट में लाई कर रहा है, वेस्ट में लाई कर रहा है और साउथ में, ठीक है. देन प्रोडक्ट आईडी, जिस भी प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस किया गया है उसकी प्रोडक्ट आईडीज क्या है. देन सेल्स कितनी हुई है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में. देन हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, डिस्काउंट कितना दिया था हमने, व्हाट वाज द क्वांटिटी दैट हैज बीन ऑर्डर्ड, एंड द कैटेगरी, किस कैटेगरी को वो प्रोडक्ट बिलोंग करता है, ठीक है. The last table is customers. Okay, so this is the customer ID, the customer names, and their segments. Whether they are consumer, they are related to corporate or home office or consumer, whatever. Okay, so these are our three tables: product, order, and customer. Now we will execute our project. And our project name is Customer Sales Insight. So first of all, let's create the database because it is our first essential step to create a database. Okay. And the name of our database will be sales. Now let's run it. After running, we have to refresh from here. Once we will refresh, we can see that sales option is visible. Now what we have to do, we have to write use sales because this codes instruct the SQL that we are going to work under sales database. Okay, so you can see that this sales is highlighted with the bold. It means we are entered into the sales database. Whatever work now we are going to do, it's automatically come under sales database, right? Now our next step is to create table. Fine. So what tables we have seen, like product, order and customer. इन tables का एक structure अभी हमें prepare करना है MySQL में. Okay. Structure means what? We have to simply design our table like this. Suppose delete it. Okay. So ये जो पूरी table है ऐसे हमें design करनी है MySQL में. Then what will happen? Then we have to import the data. जैसे ही हम data import करेंगे, जो हमारा data है इस table का, वो automatically MySQL में enter हो जाएगा. So we are writing create table and the name of this table is orders. Then opening of the bracket. अब हमको क्या लिखना होता है? अब हमको लिखना होता है name of all columns one by one using comma और साथ में उसकी डेटा टाइप को भी मेंशन करना होता है. सो जैसे यहाँ पे आपके कॉलम्स हैं ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, रीजन, ठीक है. सो वन बाय वन सारे कॉलम्स को हम एज इट इज लिखेंगे. सो फर्स्ट वन वाज ऑर्डर आईडी. ऑर्डर आईडी इसका डेटा टाइप भी हमें बताना है विच इज varchar and limit is 50. In the next video I will give the brief about the data types also. Then we have to mention अगर ये ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है या नहीं है. सो इट इज प्राइमरी की. वाई? बिकॉज इट इज यूनिक. ओके, ऑर्डर आईडी रिपीट नहीं हो रही है, हर रो यूनिक डेटा कैरी कर रही है. फाइन, दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन्ड इट एज प्राइमरी की. ऑर्डर आईडी के बाद देयर वाज ऑर्डर डेट. सो ऑर्डर डेट. वन थिंग गाइस, दैट बी assured that the format of the date should be year, month and date. Okay, YYY dash 0M dash 0D. It should be like this. Otherwise, some MySQL will not consider it. So order date and the data type is date, comma. Next one is customer ID. Customer ID again varchar. Okay, 50 I'm taking limit. Then
region, it's again varchar. Then after region, it's product ID. Okay, then again varchar. Then sales. Now sales is float. Okay, because it will be in decimal. You can write decimal also, but here I am writing float. Now profit will also be float. And then discount, it will also be float. And then quantity will be integer. Okay. And the last one is category. So category data type will be varchar. Fine. Now close the bracket and colon. Now we have to here write discount, and now we have to run it. After running, we have to refresh from here. Then refresh करने के बाद we can see that this arrow here, and under this arrow there is order table created. So this is the structure of our table which we created right now. Okay. Now next step is to create another table, and our another table is what? Product. So I'm copying the whole thing. Oops. I'm copying the whole thing and then pasting it here and simply change the names here only. Okay. So order के place पे I am writing here product, because अब जो table बनाएंगे वो ये वाली table होगी जिसका नाम है product. Okay. और इसके columns क्या क्या हैं? तो product ID, product name, category and subcategory. So product ID लिख देते हैं यहाँ पे. Product ID is also unique here. So we will consider it as primary key. Okay. And then product name हमें चाहिए. So just remove it and write product name. Product name. Its data type will be varchar. Okay. Then we want category. Okay. So just write here, just delete everything from here, and category is here with us. Okay. And the last thing we want is subcategory. And for subcategory, again, it will be varchar. I hope it's clear till here. Now run it. After running, you can see that our new table is also created. Refresh करेंगे and यहाँ पे नई table create हो गई है product की. I'm again copying the same and pasting it here. Now, why I'm pasting it? It doesn't get copied. Let me copy this table only. And now I am pasting it here for the new table, which is customer. So there is another table, right? Customer. So इसमें क्या क्या columns है? Customer ID, customer name, segment. So इनके लिए हम ये यहाँ पे new table बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे customer. And in customer there is customer ID. So इसको हम कर देते हैं customer ID. And then here it will be customer name. And then segment. Okay, this thing is not needed, so let's delete this. Now run this. What's the issue? Okay, see, comma हमको last में comma नहीं लगाना है. Now run it. अब हम यहाँ पे refresh करेंगे and then we can see that all three tables are here. So सबके basic structure हमारे पास आ गए हैं. अब हमें क्या करना है? Data fill करना है. Okay. So guys, let's now start to fill the data. So first of all, there is customer table. Okay. Customer table में ये जो table icon है इस पे right click and then you can see here table data import wizard. Here we have to click. Now we have to give the file path. So my file is here, customer. Okay. Click it. Now next button, use existing table which is in the database sales and the table name is customer. जो भी हमने create करी है उसी table की ये बात कर रहा है, तो yes हमें existing table में सारा data अपना fill करना है. Next कर देंगे. अब source column में ये columns given थे और जो हमने destination column बनाए हैं वो ये columns हैं. So बिल्कुल ठीक है ये corresponding. Okay, now next again. Now next again. And then you will see that finished performing task, मतलब सारे डेटा जो हैं वो आ गए हैं, इंपोर्ट हो गए हैं. 10 records has been imported. Guys, ये बहुत स्मॉल टेबल थी इसलिए इसने माइक्रो सेकंड्स में काम कर दिया है. जो लार्ज डेटा सेट होते हैं अगर आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस ठीक है तो वो 1 to 2 मिनट लेते हैं. ठीक है. सो नाउ फिनिश इट.
and we can see our table is being populated with this data, right? अब टर्न है ऑर्डर टेबल में सारे डेटा को फिल करने की. सो अगेन हम फाइल पाथ ब्राउज करेंगे, ऑर्डर टेबल सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एंड देन यस आई वांट टू यूज एग्जिस्टिंग टेबल, नेक्स्ट. ओके, एंड देन लेट्स हैव अ लुक कि सब ठीक है कि नहीं है. सो नाउ वी विल डू next and then next and then next, and we can see that our order table is being created. Everything is same. Okay, now come to our product table. Data import wizard file path देंगे, file path में product path दे दिया. Now next existing table, next, next, and then next, and then 10 records has been imported. Now here it is our product table. Fine. So सारा data हमने MySQL में ट्रांसफर कर लिया. अभी हमें क्या करना है, अब हम करने जा रहे हैं अपनी पहली क्वेरी को परफॉर्म. सो लेट्स ओपन आवर न्यू फाइल. लेट्स क्लोज ऑल दीज फाइल्स. नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड. ओके, नाउ ओपन द फाइल. हियर वी विल राइट आवर फर्स्ट क्वेरी, टोटल सेल्स बाय कैटेगरी. सो गाइज, पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि किसी भी क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए. हमको कैसे पता चलेगा कि क्या लिखना है. ठीक है, हम सारे कोड्स लर्न नहीं रख सकते हैं. ऐसे बहुत क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए हैं. सो इसका एक सोल्यूशन ये है गाइज कि आप पहले क्वेरी को अच्छे से पढ़ा करो, उसका जो लिटरल मीनिंग निकल रहा है उसको समझने का ट्राई किया करो. ठीक है, देन आफ्टर दैट अंडरलाइन किया करो उन वर्ड्स को. ठीक है, जो किसी कॉलम को डिनोट कर रहे हैं, या तो वो डायरेक्टली डिनोट कर रहे होंगे या वो इनडायरेक्ट वे में गिवन होंगे क्वेरी में. ठीक है, सो हमें वन बाय वन मींस वर्ड बाय वर्ड क्वेरी सॉल्व करनी होती है अपनी. सो कैसे यहाँ वर्ड बाय वर्ड करेंगे. सी, इट इज रिटन टोटल. ठीक है, टोटल मतलब किसी चीज का सम है. किसका सम है? सेल्स का. एंड दिस सेल्स टेबल इज गिवन समवेयर, वी हैव सीन, राइट? नाउ टोटल सेल्स चाहिए कैसे? बाय कैटेगरी. ठीक है, सो कैटेगरी कॉलम इज ऑल्सो गिवन समवेयर. अब इस पूरी क्वेरी का एक लिटरल मीनिंग क्या निकल रहा है कि कैटेगरी वाइज हमें टोटल सेल्स चाहिए. मींस इधर कैटेगरी हो और इधर सेल्स हो. ठीक है, तो सपोज कैटेगरी ए है, इसमें टोटल सेल कितनी हुई है? सपोज 30K हुई है. देन कैटेगरी बी है, इसमें टोटल सेल कितनी हुई है? सपोज 40K हुई है, राइट? सो अब हमको ये देखना है कि ये जो सेल्स था और ये जो कैटेगरी था ये किस टेबल में गिवन है. फाइन. वन मोर थिंग गाइस, कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करने से पहले अपने डेटा सेट को बहुत अच्छे से पहचानिए. ठीक है, उसको रट लीजिए बिल्कुल. वो डेटा सेट क्या है, रटना मतलब समझ लो अच्छे से कि ये डेटा है, इसमें ये कॉलम्स गिवन है. आप ऐसे इजीली अपनी क्वेरी को सॉल्व कर लोगे. ओके, अब हम किस चीज को कैसे नहीं सॉल्व, कब नहीं सॉल्व कर पाते हैं, क्या केस होता है? जब हम उससे अननोन होते हैं, हम उससे फेमिलियर नहीं होते हैं, राइट? और अगर हम फेमिलियर हो गए हैं देन हमारे लिए वो चीजें 10 टाइम्स इजी हो जाती है. ठीक है, सो सेल्स और कैटेगरी ये किस टेबल में गिवन है हमें ये पता होना चाहिए. सो इट इज गिवन इन दिस ऑर्डर टेबल. सेल्स एंड कैटेगरी बोथ आर गिवन, राइट? अब हम क्वेरी लिखते हैं, कोडिंग करते हैं. सो लेट मी डिलीट दिस फर्स्टली एंड नाउ राइट. सो पहला जो हमने सिंटैक्टिकल ऑर्डर पढ़ा था उसमें पहला कोड क्या हमें लिखना होता था? फर्स्ट क्लॉज वाज सेलेक्ट. सेलेक्ट क्या करना होता है फिर? कॉलम नेम्स. ठीक है, so what columns here we want to select? We want sales column and category column. But guys, here it is written total sales. Okay, अगर लिखा है total sales, average sales, count, number of sales, then we have to use some aggregate function here. और यहाँ हम use करेंगे sum function. Okay, sum of sales. अब हमें इसको एक alias name भी देना होगा क्योंकि यहाँ पे sales नहीं लिख के आएगा, यहाँ पे लिख के आएगा sum of sales. ठीक है, so हमें alias name देना होगा, मींस उसका एक निक नेम देना होगा which will be as total sales. Okay, total sales. Fine. Now हमें ये बताना है from में कि किस टेबल को ये बिलोंग करता है. So it belongs to orders table. ठीक है, टेबल आ गई, कॉलम्स मिल गए. अभी हमें कैटेगरी वाइज डेटा चाहिए, मतलब ग्रुपिंग करनी है. ओके, सो वी विल यूज हियर ग्रुप बाय. ऐसा ही था हमारा सिंटैक्टिकल ऑर्डर बिल्कुल. ठीक है, सो कैटेगरी के बेस पे हमें ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप बाय दिस. ओके, दिस इज इट. नाउ रन इट एंड आफ्टर रनिंग, so guys, here it is not sales. Once we open our table, here it is sale only, right? So we have to write here sale only, not sales. Now it will work.
So you can see that our output is this, that in technology category it is the total sales 4,617, furniture category it's 1,800, in office supplies it is 1,045. Cool. Now come to our next query, and next query says that we have to count the number of orders for each customer. See, अब हमको वन बाय वन कॉलम्स पे जाना है कि इसमें क्या क्या कॉलम्स गिवन है. सो काउंट करना है, ठीक है, किसको, नंबर ऑफ ऑर्डर्स. ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर हमें किस कॉलम से मिलेंगे. सी यहाँ डायरेक्ट कॉलम नेम नहीं गिवन है. सो ऑर्डर्स हमको किससे मिल रहे हैं, ऑर्डर आईडी से. ठीक है, सो हमें काउंटिंग किसकी करनी है, ऑर्डर आईडी की. राइट, फॉर ईच कस्टमर. अब कस्टमर के लिए हमें कौन सा कॉलम जरूरी होगा, विच कॉलम वी नीड हियर, फॉर द कस्टमर इन्फो. सो हियर कस्टमर आईडी. ओके, और वी कैन टेक कस्टमर नेम ऑल्सो. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये दोनों कॉलम्स किस टेबल में गिवन है. सो ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर आईडी कहाँ गिवन है. सो ऑर्डर आईडी इज गिवन हियर एंड कस्टमर आईडी इज ऑल्सो गिवन हियर. इजी. सो वी विल सिंपली राइट आवर क्वेरी, एंड आवर क्वेरी इज, just a minute, let me remove it. Fine. So now we will write select. What we need to select? We need to select order ID, and हमें count चाहिए कितनी है order IDs. ठीक है, so order ID, ठीक है, comma customer ID, customer ID. Anything else we needed? It is fine. ठीक है, now ये सब कुछ किसमें given था, orders column, orders table में. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा जो रिजल्ट हो वो ऐसा हो, इधर लिखा हुआ हो कस्टमर डिटेल्स या कस्टमर आईडी, और इधर लिखा हुआ हो उन्होंने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं. ठीक है, यही हमें चाहिए. सो व्हाट वी विल यूज हियर, वी विल यूज हियर ग्रुप बाय. ठीक है, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी. ओके, एंड देन रन इट. And here you can see that हर कस्टमर की डिटेल आ गई है कि उसने टोटल कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं. This is all we want, count the number of orders for each customer. So जिस कस्टमर की कस्टमर आईडी कस्ट 001 थी उन्होंने 4 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, जिनकी कस्ट 002 थी उन्होंने 3 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, लाइक दिस. ओके, सो गाइज ये हमारी बिल्कुल बेसिक क्वेरी थी. अब हम डिस्कस करेंगे एडवांस्ड क्वेरीज. सो लेट्स ओपन न्यू फाइल. And here our new query, which is we have to find the sales by region with rank. Okay, sales by region with rank. Here one term is there which is called rank. So to get this rank we need to use here rank function. कैसे, अब उसको देखते हैं. So सबसे पहले we will write, okay, so सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि कौन सा हमको कॉलम चाहिए होगा, which column we have to select. So we have to select here region column. ठीक है, sales column. Fine. So हमें sales चाहिए region wise. ठीक है, एक region है suppose A, उसमें कुछ sales हुई हैं अलग अलग जगहों पे. ठीक है, so region wise sales कैसे मिलेगी, जब हम इसको पूरा sum up करते हैं, then we can find that हाँ region A में ये sales हुई है. Okay, so let's write it. First of all we will write select. What to select? We need to select region, ओके, कॉमा सेल्स. अब हमें इस सेल्स का सम चाहिए, एंड हियर इट इज सेल ओनली नॉट सेल्स. सो हमें इसका सम चाहिए होगा. और जब हम कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हमें एलियास नेम भी देना है यहाँ पे. ठीक है, सो इसको हम दे देते हैं टोटल सेल्स. ओके, नाउ वी विल यूज रैंक फंक्शन. हमने रीजन सेलेक्ट करा, सम ऑफ सेल्स सेलेक्ट करा, एंड नाउ वी विल यूज रैंक फंक्शन. सो रैंकिंग चाहिए हमें, किसकी रैंकिंग चाहिए, रैंकिंग ओवर. ठीक है, अब हम लिखेंगे ऑर्डर बाय. सी, लेट्स राइट इट, देन आई विल एक्सप्लेन. ओवर सेल. ठीक है, किस ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, एंड देन वी विल गिव इट एज वन एलियास नेम व्हिच इज सेल्स रैंक. Now what is this, guys?
सो ये सेल्स ये रैंक फंक्शन होता है, ठीक है, जो हमको रैंकिंग देगा। किसकी रैंकिंग देगा? सो रैंक ओवर सम ऑफ द सेल्स, जो भी यहाँ पे रीजन ए, रीजन बी, सपोज रीजन ए की ये सेल्स आई, ठीक है, रीजन बी की ये सेल्स आई, रीजन सी की ये सेल्स आई, तो इन सेल्स के बीच में वो रैंकिंग दे देगा। दिस इज व्हाट इट इज रिटन, ओके। और हमें इसको एक रैंकिंग वाले जो कॉलम बन के आएगा, उस कॉलम को एक एलियास नेम दे देना है, विच इज सेल्स रैंक। अब हमको ये बताना है कि ये सब कुछ किस टेबल में है। सो इट बिलोंग्स टू ऑर्डर्स टेबल, फाइन। अब हमें ग्रुपिंग करनी है, किस बेस पे ग्रुप बाय होगा? रीजन वाइज, क्योंकि हमें रीजन वाइज ये डेटा चाहिए था, ठीक है। सो अब हम इसे रन करेंगे एंड आफ्टर रनिंग दिस इज आवर रिजल्ट। सो वेस्ट रीजन में जो टोटल सेल्स हुई है ये है, और वो टॉप पे है। नॉर्थ रीजन सेकेंड रैंक बिलोंग करता है, ईस्ट थर्ड एंड साउथ गेट्स फोर्थ। दिस इज इट, ओके। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेरी। And our query is to analyze customer profitability by segment. इसका क्या मतलब है? So it is saying कि कस्टमर के हर कस्टमर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को सेगमेंट वाइज, ठीक है। इट मींस वी वांट कस्टमर लिस्ट, वी कैन राइट हियर कस्टमर आईडी, ओके। देन सेगमेंट, किस सेगमेंट को बिलोंग करता है, ठीक है। एंड देन द प्रॉफिट, उस कस्टमर की वजह से जो भी प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, this output we want from this. So can we guess कि कौन सा हमें कॉलम सेलेक्ट करना है? So we want to select, we have to select here customer column, right? It is customer ID, or it can be customer name as well. So we will select here customer ID. Then for the profitability, we need to select profit column, okay? And for segment, we need to select segment column. So customer ID, profit and segment ये किस टेबल में दिए हुए हैं? Let's have a look. Customer ID, here it is, okay. Profit and segment is given here in this table, which is customer table, okay. So two things that were customer ID and profit, they were in the order table, and segment is here in the customer table. So we need to join these two tables, okay. How to join? Let's try this. So कैसे हमें join करना है? So first of all, let's select the columns. So select which column? We want to select the customer, from customer table, customer ID column, okay. Customer dot segment, comma. Now we want sum of profit, sum of profit as total profit, fine. So see, customer ID is given in customer table, segment is also given in customer table, and then we want sum of profit as a total profit, okay. Now we will write the table जहां पे ये सारा data available है. So it is available in customer table. फ्रॉम कस्टमर, बट दूसरे टेबल में भी डेटा अवेलेबल है. सो वी विल यूज हियर ज्वाइन. किसको ज्वाइन करना है? ऑर्डर्स टेबल को, ठीक है. ऑन किस बेस पे ज्वाइन करना है, किस बेस पे हमें ज्वाइन करना है ये बताना है. सो हम इनको ज्वाइन करेंगे. कस्टमर आईडी सेम है, ठीक है, जहां पे कस्टमर आईडी सेम है. हियर इट इज ऑल्सो कस्टमर आईडी गिवन एंड हियर ऑल्सो कस्टमर आईडी गिवन. सो इस बेसिस पे ज्वाइन करेंगे. सो वी विल राइट ऑन कस्टमर की टेबल में कस्टमर आईडी इक्वल ऑर्डर्स की टेबल में कस्टमर आईडी, ठीक है. नाउ ग्रुप बाय, ग्रुप बाय व्हाट? ग्रुप बाय सेगमेंट के बेस पे हमें ग्रुपिंग चाहिए, राइट. सो हम लिखेंगे एंड कस्टमर आईडी के बेस पे भी चाहिए. सो हम लिखेंगे कस्टमर आईडी कॉमा सेगमेंट. देन हमको एक ऑर्डर चाहिए, डिसेंडिंग में आ जाए हमारा सारा डेटा. सो टोटल प्रॉफिट जो हो वो किस में आ जाए? इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके. एंड हमें सारी डिटेल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टॉप 5 चीजें चाहिए. सो वी विल राइट लिमिट 5 हियर. नाउ रन दिस.
So here it is our result. Customer ID ये जो थी कस्ट 010, इनका सेगमेंट कंज्यूमर था, इन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया था 250. इन्हीं के इक्वल प्रॉफिट दिया था 002 वाले ने जो कॉर्पोरेट सेगमेंट में है, एंड दे गिव 250 प्रॉफिट अगेन. देन 200 profit was given by customer 003 and they belong to the segment consumer. Okay, like this. So this is our advanced level query. Now one more query we will perform, and this query, rank products by sales within each category. Okay, so for this we need to write select. कौन से कॉलम हमें सेलेक्ट करने हैं? ऑर्डर्स टेबल में एक तो कैटेगरी कॉलम. ओके, व्हाट एल्स? नाउ प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करना है हमें. ठीक है, व्हाट एल्स? नाउ हमें सम चाहिए किसका? सेल का, एज टोटल सेल्स. ठीक है, ये हमारा एलियास नेम हो गया. अब हमें रैंकिंग करनी है, सो हम यूज करेंगे रैंक फंक्शन. ठीक है, किस बेस पे? सो ओवर, अभी हमें पार्टीशन करना है कैटेगरी वाइज. ठीक है, तो हमें यहाँ लिखना होता है पार्टीशन बाय कैटेगरी के बेस पे. ठीक है, अब हमें ऑर्डर बाय भी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाए सर, तो सम ऑफ सेल. ठीक है, किस ऑर्डर में हो? डिसेंडिंग ऑर्डर में हो. और इस पूरे को हम नेम दे दे रहे हैं एज सेल्स रैंक. ओके, नाउ ये सारा कुछ है अवेलेबल फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल, लेकिन साथ साथ ये प्रोडक्ट टेबल में भी है डेटा, तो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा किसको? प्रोडक्ट टेबल को. ऑन किस बेस पे? प्रोडक्ट आईडी जहां इक्वल हो गई है. सो ऑर्डर्स टेबल की प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स प्रोडक्ट टेबल की प्रोडक्ट आईडी. ओके, अभी हमें ग्रुपिंग भी करनी होगी. सो ग्रुप बाय कैटेगरी के बेस पे हमें मिले डेटा एंड प्रोडक्ट नेम. प्रोडक्ट नेम. ओके, नाउ हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सारा डेटा चाहिए क्योंकि हमें रैंक चाहिए. दैट्स सो वी विल राइट हियर कैटेगरी, ऑर्डर बाय कैटेगरी, कॉमा सेल्स रैंक. रैंक में हमें बता दो सारा कुछ क्या है. ठीक है, सेल्स रैंक. नाउ रन इट. सेल रैंक है ये, इट इज नॉट सेल्स रैंक. ओके, सो दिस इज आवर आउटपुट. सो हमने प्रोडक्ट्स को रैंक कर दिया है बाय सेल्स, सेल्स के बेस पे कैटेगरी वाइज. दिस इज आवर आउटपुट. ओके, now we will see our next query. So let's open new file, and here is the query. It asks total sales per customer by product category. Okay, here what we have to select? We have to select total sales, means sales हमें select करनी है, sales column. Then customer, जिसमें customer ID and customer name we will select. Okay, and all these things we have to select by the category. Okay, category के base पे. So category column हमें select करना है. So first of all we will write select. ये जो डेटा है ये 2 टेबल्स में गिवन है. ओके, सी कस्टमर्स की सारी डिटेल कस्टमर टेबल में गिवन है, एंड प्रोडक्ट कैटेगरी ये सारा प्रोडक्ट टेबल में गिवन है. सो ऑर्डर टेबल में सॉरी गिवन है. सो व्हाट वी विल डू? वी हैव टू हियर जॉइन द 2 टेबल्स. सो जब हम यहाँ कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहे हैं उस समय हमें उनकी टेबल मेंशन करनी है. सो दैट्स आई एम राइटिंग हियर कस्टमर टेबल में डॉट कौन सा कॉलम चाहिए? कस्टमर आईडी कॉलम चाहिए. ओके, कॉमा कस्टमर टेबल में कौन सा कॉलम चाहिए? कस्टमर नेम कॉलम चाहिए. ओके, कॉमा ऑर्डर्स टेबल में से क्या चाहिए? कैटेगरी चाहिए. ठीक है, व्हाट एल्स? और हमें चाहिए सेल, एंड सेल का हमें चाहिए सम. वी वांट सम ऑफ दिस सेल, और हम इसको एक एलियास नेम देंगे विच विल बी टोटल सेल्स. नाउ ऑल दीज डेटास आर वेयर इट इज इन ऑर्डर्स टेबल, as well as we will use join function. Comma is missing here. Okay, as well as we need to use join function. किसको किसको join करना है? कस्टमर को और ऑर्डर्स टेबल को ज्वाइन करना है. सो आई एम राइटिंग हियर कस्टमर
किस बेसिस पे ज्वाइन करना है? ऑन ऑर्डर्स टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो इक्वल हो कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी से। ओके, सो ज्वाइन हमने लिख दिया, दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर लिया। व्हाट एल्स? प्रोडक्ट के बारे में भी हमें चाहिए डिटेल्स, सो हम प्रोडक्ट टेबल को और ऑर्डर टेबल को भी ज्वाइन करेंगे। सो हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑन, ओके, ऑर्डर्स किस बेसिस पे? ऑन प्रोडक्ट आईडी जहां जहां सेम है। सो ऑर्डर्स में प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी डॉट प्रोडक्ट आईडी। सी गाइस, हियर इट इज रिटन हमें टोटल सेल्स चाहिए कस्टमर की बाय देयर प्रोडक्ट कैटेगरी। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव टू जॉइन ऑल थ्री टेबल्स हियर। नाउ हम यहाँ एक कंडीशन भी दे रहे हैं और वो कंडीशन ये है कि हमें एक स्पेसिफिक डेट है, उसके अंदर ही हमें उसके अंदर का ही सारा डेटा चाहिए। ठीक है, सो वो कंडीशन क्या है कि ऑर्डर डेट जो है, ठीक है, वो बिटवीन हो किसके? सो 2024 से 1 Jan 2024 एंड 31 December 2024 तक का डेटा हो, वो वाला ही डेटा हमें चाहिए। ठीक है, सो आई एम राइटिंग दिस कंडीशन हियर। नाउ अब हमें ग्रुपिंग करनी है। किस बेस पे ग्रुपिंग करनी है? कस्टमर के बेस पे और कैटेगरी के बेस पे। सो वी विल राइट हियर कस्टमर आईडी, ओके, कॉमा कस्टमर नेम, कॉमा कैटेगरी। ओके, अब जब ये ग्रुपिंग हो गई है उसके बाद हमें सिर्फ वही डेटा चाहिए जहां पे जो सेल है वो 500 रुपीज से ऊपर हो। ठीक है, सो मैं यहाँ एक कंडीशन और मेंशन कर दे रही हूँ कि सेल जो है वो ग्रेटर देन हो 500, राइट। सो सारी जो क्लॉजेस हैं वो सब यूज हो जाएंगे। नाउ आई एम यूजिंग हियर हैव, क्योंकि एक बार जब ग्रुपिंग हो जाती है उसके बाद हम वेयर दूसरी कंडीशन नहीं यूज कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन मतलब वेयर के बेस पे नहीं यूज कर सकते हैं। फिर हमें अगर दूसरी कंडीशन पुट करनी है सो वी हैव टू यूज दिस हैविंग क्लॉज। सो हैविंग क्लॉज सेज कि जो सम है सेल का वो किससे बड़ा हो? 500 से ग्रेटर हो। ओके, नाउ हमें ये सारा डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। सो ऑर्डर बाय टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कैसी हो? इन डिसेंडिंग। ओके, और हमें टॉप 5 की रोज चाहिए। सो हम यहाँ लिमिट भी यूज कर रहे हैं। सी, जितना हमने देखा था सिंटैक्टिकल ऑर्डर जो प्रीवियस वीडियो में था उसका ऑलमोस्ट सारे क्लॉजेस हमने यूज कर लिए हैं। ठीक है, सो अब हम इसको रन करते हैं एंड रन करते ही हमारे पास ये पूरा आउटपुट आ गया है। So guys, this is it for this video. Please keep practicing and I will be come very soon with my new project where we will learn some more interesting facts about SQL. So guys, take care and subscribe the channel. Bye bye.